انسانی تاریخ اور حال میں ایسا معاشرہ خال خال ہی ملتا ہے جہاں جرم اور تشدد نہ ہو۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ یہ تشدد قابل برداشت حدوں میں رہتا ہے اور کہیں یہ جرم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ معاشرے اور ملک کی شناخت مسخ ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہمارا سفر 1947 سے شروع ہوتا ہے اور پے در پے جنگوں کے بعد آج ہماری حالت دنیا بھر میں دہشت اور جرم کے حوالے سے تعارف کی بن چکی ہے۔ آج بھی ہمارے پڑوس میں ایک جنگ جاری ہے جس کے اثرات خون بن کر ہماری رگوں میں دوڑ رہے ہیں اور حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہاں نوکری اور روزگار ملے نہ ملے، اسلحہ بہرحال مل جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے جن ممالک کے شہریوں کے پاس سب سے زیادہ اسلحہ موجود ہے، پاکستان کا نمبر اس میں 6 ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں پہ ہتھیاروں کی تعداد 3 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ میں اس وقت کراچی کے علاقے سہراب گوٹ پہ کھڑا ہوں جہاں میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک بھر سے ٹرکوں اور بسوں پر اسلحہ لاد کر لایا جاتا ہے اور یہاں سے وہ اسلحہ سارے کراچی میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہمارے شہریوں کو اتنی بڑی تعداد میں اسلحے کی ضرورت کیوں ہے؟ آج ہم اس کی تلاش کریں گے۔ ویسے تو اسلحے کی تاریخ بہت پرانی ہے، مختلف ادوار میں مختلف قسم کا اسلحہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ دنیا کا پہلا بارودی ہتھیار سن 1288 میں چین میں بنایا گیا۔ 20ویں صدی میں مختلف برانڈز کے مختلف جدید ہتھیار کافی مقبول ہوئے۔ ہینڈ کیری ویپنز جن میں کلاشنکوف، پسٹل، 9mm، براٹا وغیرہ کافی مقبول ہوئے۔ UN کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں چھوٹے ہتھیاروں کی تعداد 875 ملین ہے، جن میں سے 75% عام لوگوں کے پاس ہیں اور صرف یہ چھوٹے ہتھیار دنیا میں 5 لاکھ لوگوں کی موت کا باعث بن چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سالانہ $7 بلین چھوٹے ہتھیاروں کی تجارت پر قانونی طریقے سے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ دنیا میں ہتھیار بیچنے والے ممالک میں امریکہ سر فہرست ہے۔ پاکستان میں ہتھیاروں کے حصول میں دلچسپی 1979 میں شروع ہونے والی افغان جنگ سے ہوئی، جس نے پاکستان میں اسلحے کی سمگلنگ کے فلڈ گیٹس کھول دیے اور پاکستان میں نہایت مقبول کلاشنکوف کلچر کا آغاز ہوا۔ سمندر کے ان راستوں سے بھی غیر قانونی اسلحہ ہمارے ملک تک پہنچتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سخت گیر فوجی حکومتیں بھی اس سمگلنگ کو روکنے میں آخر کیوں ناکام رہتی ہیں؟ پوچھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر سے۔ آپ کے زمانے میں جب آپ وزیر داخلہ تھے تو ایک بڑی سیریس کمپین چلی تھی کہ اسلحہ لوگوں سے واپس لے لیا جائے، کیوں وہ اپنے نتائج حاصل نہیں کر سکی؟ افغان وار چھڑی تو بہت سارے ہتھیار جو روس نے وہاں پر لا کر رکھے تھے، امریکہ نے لا کر رکھے تھے، اسمال آرمز، کلاشنکوفs، وہ بلیک مارکیٹ میں آ کر بکنی شروع ہو گئی یہاں پر۔ اب دیکھیں کوئی آدمی 10 کلاشنکوفs لا رہا ہے، کوئی 15 پستول لا رہا ہے، کوئی گرینیڈ لا رہا ہے، وہ اس نے وہاں سے انگور لے کر چلا ہے، افغانستان سے سردہ لے کر چلا ہے، اس کی پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے نیچے 4 کریٹ میں یہ چھپا ہوا ہے، اسکینر ہے نہیں۔ اب کچھ ساری پیٹیاں تو آ نہیں سکتا کہ اس پیریشیبل کموڈٹی کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو اس پر پالیسی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں رہی۔ اچھا، اب یہ اسکینرز کا آپ نے ذکر کیا، اسکینرز کیوں نہیں آ سکے؟ انٹری پوائنٹس پہ اسکینرز لگ جاتے ہیں۔ ویری ایکسپینسو آئٹم، اور اتنے ملک میں روٹس آف انٹریز ہیں کہ ان پہ کہاں ان کو لگائیں گے، اٹس اے ویری ایکسپینسو آئٹم۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہ اونٹوں پر لے آئیں گے، گدھے پر لے آئیں گے، کشتی میں رکھ کے انڈس پار کر لیں گے اور اسکینر کراس کر کے اور پھر دوسری گاڑی میں چڑھا دیں گے۔ تو دے ہیو دیئر سسٹم ٹو بیٹ یو۔ غیر قانونی ہتھیاروں کے حصول میں پاک افغان بارڈر کے قریب واقع درہ آدم خیل کی اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں نے بھی نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔
जिस के आम लोगों के पास हथियार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उन ममालिक में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। ऐसे ममालिक में सरे फहरिस्त अमेरिका, नंबर 2 पर इंडिया, नंबर 3 पर चाइना, नंबर 4 पर जर्मनी और नंबर 5 पर फ्रांस हैं। पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ हथियार मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 70 लाख अफराद के पास लाइसेंस मौजूद है। सबसे पहले तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि लोग असलहा रखना क्यों चाहते हैं। एक आम आदमी शदीद तरीन एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उसको इदारों पर, उसको पुलिस के ऊपर, उसको हुकूमत पर, शायद ये कि उसका रियासत पर से भी ईमान उठ गया है कि जो जिम्मेदारी रियासत या हुकूमत की थी कि उसको महफूज रखे, वहां पर रियासत और हुकूमत वो उस तरीके से उसको महफूज रखने में नाकाम रही है। और जब वो नाकाम रही है तो फिर लोगों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ शुरू होता है और लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत करने का फैसला करते हैं। फरमाइएगा कि आज शहर की जो सूरत हाल कराची की हमारे सामने है, क्या किसी सियासी जमात के लिए ये हकीकतन मुमकिन है कि वो असले के बगैर और मिलिटेंट विंग के बगैर यहाँ पे सियासत कर सके? मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी की, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। बदकिस्मती बोले या जो भी है, हमारी पार्टी अदम तशद्दुद की है। कुछ यहाँ पे एक तंजीम है कि जिनकी पार्टी जो है वो बनी टेररिस्ट तंजीम है, वो दहशत पे बनी है। वो अगर बंदूक रखता है तो उसकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, और अगर मैं बंदूक उठाता हूँ तो मेरी पार्टी ख़त्म हो गई। असले का ढेर कराची बना हुआ है। ये जो वक्त है उस वक्त कराची का, तो जाहिर बात है कि मैं तो समझ को लोग बोले बेरूत है या दूसरा, ये उससे भी ज़्यादा है। लोग यही करेंगे कि भाई यहाँ तो जितना बड़ा बदमाश होगा उसको तो वजारत मिल जाएगी। इसकी क्या कीमत आपको मुफ्त में देने की? क्लाशनकोफ कितने की मिलती है? मिल जाती है 25-30 हज़ार तक, बगैर लाइसेंस के। बगैर लाइसेंस। आप असला डीलर हैं? जी, मेरी सिस्टर भी है, मैं भी हूँ। हमने 40 साल के दौरान इतना असला तुर्की से इंपोर्ट नहीं किया जितना इस दफा हुआ। ये लाहौर है जिसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, और हम सब जानते हैं कि दिल को लाहक मर्ज जानलेवा भी हो सकता है। देखना होगा कि पाकिस्तान के इस दिल की धड़कन में असले की घन घरज किस हद तक शामिल हो चुकी है। जो आपके पास गन्स पड़ी हैं, ये आपने इंपोर्ट की हैं? नहीं, ये लोकल है हमारे पास साथ। आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि नाजायज असला भी बेचा खरीदा जाता है? हम तो छुपी हुई है तो नहीं। अरे जितनी भी डीलर है, डीलरों की मैं बात कर रहा हूँ, इधर जितनी डीलर है हमने बोर्ड लगाए, असला हमने शोकेसों में सजाया है, कोई छुपा कर नहीं रखा है। ये हर वक्त हमारा इसका चेकिंग होता है। क्या आपके इल्म में है कि नाजायज असला बिकता है लाहौर में? नजर कोई बताता है किसी को? क्या क्या है मतलब इसमें? हमारे पास पिस्टल्स हैं और शॉर्ट गन्स हैं। प्राइस लिस्ट आपके पास होगी इन चीज़ों की जो आप बेच रहे हैं? प्राइस लिस्ट से कोई तयशुदा या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मंजूर शुदा नहीं होती। नाजायज असले का जो खरीदो फरोख्त है वो आप ट्रेड में बैठे हुए हैं, ये कहाँ ज़्यादा हो रहा है? यहाँ हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, किन चैनल से हो रहा है, कौन से रास्तों से हो रहा है? नहीं, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई चैनल्स, कोई रास्ते ना इसे कोई तयशुदा है, ना कभी से तयशुदा थे, ना होंगे, ना हैं। अच्छा, आपके साथ जो रवैया है हुकूमत का, सरकार का, पुलिस का, वो ठीक है? कोई शिकायत? सख्त है और काफ़ी सारी शिकायत हैं, हमें भी उनके साथ और उन्हें हमारे साथ। अब एक आदमी है जिसको हमने असला सील किया है, लाइसेंस लेके आता है हमारे पास, हम उसे 25 गोली सेल कर देते हैं। जब वो बाहर निकलता है, यहाँ बाहर निकलने के बाद जब वो चेक होता है, उसको ये ऐसे ऐसे उसके ऊपर सवालात करते हैं। मिसाल के तौर पर ये पहला सवाल क्या करते हैं कि आपके पास लाइसेंस है? जी है। लाइसेंस पे परचेज किया आपने? लाइसेंस पे परचेज किया। परमिट कहाँ है आपके पास? परमिट क्या चीज़ है?
जब एक लाइसेंस गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक लाइसेंस इशू कर दिया, फिर उसके बाद फर्दर किसी परमिट की जरूरत क्या रह जाती है? ये बताइएगा कि आपके पास कोई यानी जाली लाइसेंस लेके आ जाता है तो उसका कोई? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2004 में एक नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने कहा जी कि जब आपके पास कोई लाइसेंस, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर के लिए, लाहौर से बने हुए लाइसेंस लेके हम उसको डीसी ऑफिस में लाइसेंस पहले लेके जाते हैं, उसको हम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम उसको। लेकिन अगर लाहौर से बना हुआ लाइसेंस नहीं है उसके लिए तो फिर हमारे हम पाबंद भी नहीं है, हमने कहा भी नहीं किया। इज इट अ गुड आइडिया कि ये जो लाहौर का ये जो वेरिफिकेशन वाला मामला है, अगर ये पूरे मुल्क में हो? वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। तो कीमत इसकी तरह कोई भी निकाल के जो 2-4 कुछ चीजें दिखाई ना जी। एक पैर करते दूसरा नहीं। इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत तो 6,000। अच्छा, 6,000 में आप बेचते हैं? अब मैंने अगर आपसे ये खरीदना है सपोज, तो ये आप क्या रिक्वायरमेंट क्या देखेंगे मेरे साथ? आपको मुफ्त में दे देंगे। आपको मुफ्त में दे देंगे। आप असला डीलर हैं? जी, मेरी सिस्टर भी है, मैं भी हूँ। माशाल्लाह, आप असले की शॉप करती हैं? हाँ जी। फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद खुद ही सारा काम करना पड़ा, भाई कोई नहीं है, तो रिलेटिव्स आपको पता ही है कैसे होते हैं, शरीक जो होते हैं, शरीक तो अल्लाह ताला ने भी अपना नहीं बनाया। कहाँ पे आपका शोरूम? जड़ावाला में। ये दुकान जो आप देख रहे हैं, ये अभी दुकान खुली हुई थी, हम यहाँ पे आए हैं, हमें देख के इन्होंने शॉप बंद की, चले गए। क्यों? इसका जवाब सिर्फ यही बता सकते हैं। आप खाएंगे? नहीं, खा लें। ये कहाँ का जी? ये ब्राजील का। ब्राजील? जी। अच्छा, ये इम्पोर्टेड है? जी। आप इम्पोर्टेड करते हैं? हम इम्पोर्ट नहीं करते, जो बड़े असला डीलर हैं इम्पोर्ट करते हैं, जो इधर माल रोड पे या कराची से, हम उनसे खरीदते हैं। ये भी इम्पोर्टेड है, ये तुर्की का बना हुआ। ये जो है ये तुर्की जी। और क्या प्राइस है इसकी? ये 55,000 रुपये। हमने 40 साल के दौरान इतना असला तुर्की से इम्पोर्ट नहीं किया जितना इस दफा हुआ। ये हमारा अपना बनाया हुआ पाकिस्तान मेड है। ये तो मेड इन इटली लिखा हुआ है। अच्छा, है ये लोकल, लेकिन लिखा हुआ है मेड इन इटली। लाहौर के इलाके रावी रोड पर वाक़े 500 गज से भी कम के इलाके में असले की ये तमाम दुकानें वाक़े हैं, जिससे इस कारोबार के मकबूल होने का पता चलता है। हम जब यहाँ पे आए और असला डीलर से गुफ्तगू की कोशिश की, तो चंद अफराद ने हमसे बात की, और वो असला डीलर्स जो हमसे बात करने में आराम महसूस नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी दुकानें बंद की और वो यहाँ से भाग गए। असलहा डीलर्स के मुताबिक तो शायद लाहौर में गैर कानूनी असलहे का कारोबार वजूद नहीं रखता, मगर अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। ये कहाँ से मिलता है आपको? नजायज मिल जाता है? आराम से मिल जाता है। कौन कौन से इलाके हैं लाहौर के जहाँ से ये लारी अड्डा, बदामी बाग। लारी अड्डा, बदामी बाग। लेकिन कैसे मिलता है? रास्ते में लोग मिलते हैं, कुछ छुपी हुई दुकानें हैं, घर से कारोबार करते हैं लोग? दुकानों में भी होता है, घरों में भी होता है। जिनको क्या आराम से दे देते हैं, ऑफर करते हैं आप? कौन कौन सा असला मिलता है? आराम से सारे कलेक्शनें मिल जाती हैं, 222, 44 सारी मिल जाती है। कितने तक की मिल जाती है? क्लैशिंग कोफ कितने की मिलती है आजकल? मिल जाती है 25-30 हज़ार तक, बगैर लाइसेंस के। बगैर लाइसेंस 25,000 की मिल जाती है। और ये सामने कौन सी चीज़ दिखती है? ये सारी क्लैशिंग कोफ है? ये कलेक्शन भी है, 222 भी है। 222 कितने की मिलती है? ये 15-20 हज़ार आराम से मिल जाती है। ये बगैर लाइसेंस के मिल जाती है, गोलियाँ भी मिल जाती हैं आराम से। तो ये इसका मतलब मुश्किल नहीं है? मुश्किल नहीं। अच्छा, ये बताएं कि कोई अगर असला जिसका लाइसेंस बनवाना हो, ये ज़्यादा मुश्किल है या नाजायज़ आसान कौन सी चीज़ है? आसान नाजायज़ चीज़ें आराम से मिल जाती ये जो आपके पास है, ये क्या चीज़ है? ये भी पिस्टल टाइप है। तो ये आपका शॉप है? मजबूरन लेनी पड़ती है। मजबूरन क्यों? बस कोई वैसे वाक़यात होते हैं जिसके लेनी पड़ती है। तो आप लाइसेंस बनवा के लिए जायज़ असला है, नाजायज़ क्यों? नाजायज़ आने से मिल जाता है, बदलसानी से। अगर ये कहीं इस्तेमाल होगा तो उसका रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड। मैंने एक प्रोहिबिटेड बोर्ड का लाइसेंस इशू नहीं किया। सियासत बहुत ताकतवर है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये असला वापस क्यों नहीं लिया गया? गोली का दौर है, कौन रोकता है जी? जिसने रोका हो सुबह को वो नहीं होगा, नाले में पड़ा होगा। रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट, ये सब चीज़ें कराची में मौजूद हैं।
पाकिस्तान में 2008 के बाद सालाना 35 से 40 हजार असलहा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और 2 करोड़ से जायद गैर कानूनी हथियार लोगों के पास मौजूद हैं। कराची सिर्फ आबादी के लिहाज से नहीं बल्कि नाजायज असले के एतबार से भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ प्रेशर ग्रुप्स हैं, एथनिक माफियाज हैं, सेक्टेरियन किलिंग्स हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स भी सबसे ज्यादा कराची में ऑपरेट करते हैं। क्या इन तमाम मुसल्लह ग्रुप्स के आगे पुलिस बेबस तो नहीं होती जा रही? पूछना होगा एडिशनल आईजी अख्तर हुसैन गोरचानी से। सब कराची में कितनी तादाद में इलीगल वेपन मौजूद है? परसेप्शन जो आपका है वो मैं समझता हूँ बड़ी हद तक सही है। असला काफ़ी है, नाजायज असला कराची में काफ़ी है। जो वेपन्स की सबसे ज़्यादा कौन से वो ग्रुप्स हैं जिनसे आपको एनकाउंटर करते हुए, मुकाबला करते हुए सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है? मेनली हमें जिन ग्रुप से मतलब वास्ता पड़ता रहता है उनमें एथनिक ग्रुप्स भी हैं, उसमें सेक्टेरियन ग्रुप्स भी हैं और उसमें मतलब ये जो गैंग वॉर्स जब होती हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैंग्स, अब ये सब अपनी सर्वाइवल के लिए ये जो इलीगल वेपन्स की ट्रैफिकिंग है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। क्वालिटी, क्या आपकी फोर्सेस बेटर इक्विप्ड या ये दीज ग्रुप्स आर बेटर इक्विप्ड? टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके पास तो इसमें कोई शक नहीं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी होते हैं, बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। ट्रेडिशनल जो रूट्स हैं जहाँ से इलीगल आर्म्स आ रहे हैं कराची में, वो कौन कौन से हैं? दूसरे शहरों की तरह कराची भी अफेक्ट हुआ, बल्कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ। और ट्रेडिशनली यहाँ 2-3 रूट्स हैं जो जिनसे इलीगल वेपन्स जो हैं उनकी ट्रैफिकिंग जारी रहती है। एक तो है बलूचिस्तान से जो हब साइड से लोग आते हैं, दूसरा है पंजाब और केपी से जो लोग आते हैं मुख्तलिफ मुसाफिर बसों में या पैसेंजर ट्रेन्स में, और ये इतनी ज़्यादा होती है, क्वांटम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि यहाँ वर्चुअली आप हर गाड़ी को चेक करके, हर पैसेंजर को चेक करके आप नहीं ला सकते। उसे अगर इस तरह आप करने लगे तो मेरे ख्याल है सुपर हाईवे पर मीलों लंबी कतारें लग जाएं। पाकिस्तान में छोटे असलहे की तिजारत पर सालाना 3 करोड़ 93 लाख 8,708 डॉलर खर्च हो रहा है। एक हकीकत को तस्लीम करते हुए जिस के पास जो असला है उसको लाइसेंस दे दें, फिर लीगल कर दें, एक रेवेन्यू का एक निज़ाम जनरेट हो जाएगा। जब मैं 3 साल इंटीरियर मिनिस्टर था, मुझ पर बहुत प्रेशर आया। मैंने एक प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस इशू नहीं किया, नॉट इवन वन सिंगल, किसी को भी। मैं तो हैरान इस बात पर होता हूं कि जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं, जिनको अल्लाह बहुत ओहदे देता है, पावर्स देता है, मिनिस्ट्री में बैठते हैं, होम डिपार्टमेंट में बैठते हैं, वो खुद जो है इस चीज़ को रोकने के बजाय इसकी लोगों को नाजायज असला बांटने में मुलव्वस हो जाते हैं। आप पता कीजिए 29,000 हथियार दिए गए कि नहीं दिए गए, और ये इस पे बेचे गए कि नहीं बेचे गए। सुप्रीम कोर्ट नोटिस लिया, FIA ने लिया कि नहीं लिया, और अब प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है एप्लीकेशन। CID कराची के SSP चौधरी असलम आपको इसलिए भी याद होंगे कि हाल ही में उनके घर को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। नाजायज असले के इस वसी कारोबार के सामने क्या उनकी दबंग आवाज मध्यम पड़ चुकी है? उन्हीं से पूछते हैं। चौधरी साहब, नाजायज असला कराची में जिस हद तक फैल चुका है, कहां से शुरू होती है बात? असला जो स्मगल होता है, बहुत सारा असला यहाँ पर पकड़ा गया। ये ऊपर से यानी कि गैर इलाके से, वजीरिस्तान से ये असला चलता है। बसों, ट्रकों में मुख्तलिफ खुफिया खाने बनाए होते हैं, उन खानों में ये छुपाकर, ऑयल टैंकरों में छुपाकर ये असला कराची लाया जाता है। आप खुद इसका निशाना बन चुके हैं, यानी दहशतगर्दी का आप खुद निशाना बन चुके हैं, जाहिर है। अब आप बताइएगा कि क्या दहशतगर्द तंजीम हो या कोई प्रेशर ग्रुप हो या कोई प्रॉपर्टी का माफिया हो, जहां जो इलीगल वेपन्स जिनके पास हैं
पुलिस फोर्स के पास या रियासत के पास क्या इतनी ताकत है कि वो इनसे असला वापस ले सके? बिल्कुल बिल्कुल, रियासत बहुत ताकतवर है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये असला वापस क्यों नहीं लिया गया आज? अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 तारीख को यहाँ पे जो असले के स्मगलर हैं, जिनको जो असला आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनमें आगा कमाल है, सैयद इमरान है, नकीबुल्ला है, रमज़ान है, मुजीब है, जावेद है, मोहम्मद अली बलूच है, आफ्ताब है, गुल रहमान। ये गुल रहमान वो आदमी है जो ऊपर से, उसकी फैक्ट्री है, ऊपर से असला देता है। और मुजीब नाम का बस ड्राइवर है जो लेके आता है। अब इनसे हज़ारों गोलियां, 20,000 गोलियां इनसे पकड़ी गई, कलेक्शन पकड़ी गई, रॉकेट लॉन्चर पकड़े गए, हैंड ग्रेनेडों की पेटियां पकड़ी गई। अच्छा, इसके अलावा जो है एक अकबर नाम का बंदा है जो मेहरान कोच में उसमें लाता है, वो पकड़ा गया, उससे हज़ारों गोलियां मिली। इसके अलावा ये जो टीटीपी वाले लाते हैं, ये खुद अपना भी लाते हैं। इनमें एक शाकिर नाम का आदमी है जो लाता है। इनको ऊपर से शेख खालिद और उस्ताद असलम और गालिब नाम के लोग हैं जो असला देते हैं। अब ये कोयटे से लाए थे जैकटें, ये जो सीवीओ पे ब्लास्ट हुआ है, वो जैकटें अनार की पेटियों में ये रख के लाए और असला जो है कोच के अंदर कम्बलों में लपेट के लाए कोयटा से। इसमें कुछ दुकानदार भी मुलव्वस हैं, ये जो असले की दुकानों वाले हैं ये भी मुलव्वस हैं। ये भी बहुत सारा इलीगल ले लेते हैं और उसको फिर रजिस्टरों पे चढ़ा देते हैं। इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते रहते हैं, बहुत सारी दुकानों को भी सील कराए इनकी। सो अब यहाँ पे जो असला आ रहा है ये बलूचिस्तान से भी आ रहा है, ये और इलाका सरहद से भी आ रहा है, सरहद से भी आ रहा है, इलाका गैर से भी आ रहा है। जी जी, सरहद से मुराद इलाका गैर, वहां से भी आ रहा है। ऐसा भी असला आ रहा है जो यानी इम्पोर्टेड असला है, या इम्पोर्टेड असला भी इन्हीं इलाकों से? इन्हीं इलाकों से आ रहा है। एक है जमशेद बाजोड़ी, वो यहाँ पे पकड़ा गया था, वो बहुत बड़ा, वो शालीमार कोच में रहता था, वो असले का बहुत बड़ा स्मगलर था, शराबगोड़ में रहता था। इसके अलावा रमज़ान है, वो एक बड़ा काम करता है। एक रशीद है, वो बड़ा काम करता है। एक जुम्मा है, ये शालीमार कोच में लाता है, ये बड़ा काम करता है यहाँ पे। ये इन्होंने जिस आदमी को देना होता है उसका मोबाइल नंबर लिया होता है इन्होंने, और इन्होंने कोड वर्ड रखे होते हैं कि कलेक्शन को डंडा बोल देंगे, ग्रेनेड को प्याली बोल देंगे। मुसल्लाह जो तंजीमें कराची में काम कर रही हैं, उनके पास असले की क्वालिटी और पुलिस के पास असले की क्वालिटी, क्या इसमें कोई फ़र्क है? उनके पास भी असला है। देखो, असला तो एक ही किस्म का है। वो हमारे पास चाइना का है, तो उनके पास रशिया का होता है, तो उनके पास थोड़ा बेहतर होता है। 85 में जब नॉन पार्टी इलेक्शंस के जलसे शुरू हुए, उस वक्त स्टेज पर नज़र आना शुरू हुए, और वो उस वक्त रिवाज वो था ज़्यादा फ़लस्तीन के रुमाल का रिवाज, तो वो बांध के खड़े होते थे और उनके हाथ में स्टेन गन। ये 85 में आया? 85 से शुरू हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद 88 का भी जो इलेक्शन है उसमें भी नज़र आया है, लेकिन उस वक्त ये शहर में कोई ऐसी वारदातें इस तरह से नहीं होती थी। लेकिन ये जो फिर है कि 86 से जब से कि यहाँ बुशरा ज़ैदी केस हुआ है, और फिर आपस में लिसानी तासुबात शुरू हुए, आपस में इख्तलाफात, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने डेवलप होना शुरू हुआ है। फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ कस्बा में औरंगी में जब बहुत ज़्यादा फसादात हुए हैं, तो उस वक्त चौकिंग भी हुई कि आप टेलीविज़न बेच दें और कलाशिंकोव ख़रीदें, कलाशिंकोव लें, इस तरह की भी चीज़ें आई। अच्छा, ये कब हुआ जी? ये कौन से साल? ये होता है 86 का एंड है, फिर 87। पहले पुलिस वालों ने अपनी गाड़ियों पर जंगले लगाए पथराव से बचने के लिए। फिर जब गोलियां शुरू हुई तो उन्होंने फिर वो बख्तरबंद गाड़ियां ली, लेकिन बख्तरबंद गाड़ियों के लिए रॉकेट आ गए, तो उसके बाद फिर उनके लिए ये मुश्किल हुआ अपने आप को भी तहफ़्फ़ुज़ करना। रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट, ये सब चीज़ें पर कराची में मौजूद हैं। आप मुझे डाकुओं के, दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ना चाहते हैं? गोली का दौर है, कौन रोकता है? जिसने रोका हो सुबह को वो नहीं होगा, नाले में पड़ा होगा। आपको अपनी फोर्स के अंदर भी बाज़ लोग गलत कामों में मुलव्वस होते हैं, उन पे भी आपको चेक रखना होता है। एक ही हल है, पुलिस वाले की गवाही को अदालत माने पर खत्म है। इसराइली वेपन ही जरा पकड़े गए, जराई वाला बंदूक तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता।
जो एक पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप आप कह लीजिए, आप उसको डिसआर्म अगर करते हैं तो दूसरे ग्रुप के लोग उसको मार जाते हैं। ये इस तरह की जो डिसआर्ममेंट होती है जी वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। वो बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि किसी एक एथनिक या सेक्टेरियन ग्रुप को ये मैसेज न जाए कि जी ये सिर्फ टारगेटेड उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। अचानक एक आम शहरी से कहते हैं कि आप वेपन सरेंडर करें, अपना जो आपका लीगल वेपन है, जिसका आप लाइसेंस है, जिस पर आप टैक्स देते हैं, तो उसका तो सवाल ये होता है कि आप मुझे डाकुओं के, दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ना चाहते हैं, आप मुझे निहत्था करना चाहते हैं। तो ये सारे सवालात एक आम आदमी करना शुरू करता है। कैसे इतना असला यहां आ रहा है? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं अनिक कि कराची तक असला पहुंचने तक सबको पता है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में तमाम असले की फैक्ट्रियां हैं और कराची पहुंचने तक 3 दरिया अबूर करते हैं। हर दरिया के दोनों तरफ पुलिस चेक पोस्ट हैं, रेंजर्स चेक पोस्ट हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 14 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। ये सारी नाकाम होती हैं तो असलहे से लदा एक ट्रक कराची पहुंचता है। यहां पर कराची में तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां तो असलहा किराए पर दस्तयाब है। क्यों किराए पर दस्तयाब है? एक आम आदमी को मिल जाता है, पुलिस को क्यों नहीं मिल पाता? किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को क्यों नहीं मिल पाता? ये सवालात हैं जिसके जवाब देने की जरूरत है। मैं इस वक्त कराची के इलाके मलीर और गडाब के संगम पे खड़ा हूं। ये वो राहदारी है जो मुजरिमों की आमदोरफ्त के हवाले से मशहूर है। इस इलाके में नाजायज असले की महज खरीदो फरोख्त ही नहीं होती, बल्कि यहाँ पे नाजायज असला किराए पर भी दस्तयाब है और पार्टनरशिप की बुनियाद पे भी। पार्टनरशिप की बुनियाद क्या होती है, ये सवाल हम पूछेंगे नाजायज असले के एक व्यापारी से। आपके पास ये क्या है? ये MP5 है। अच्छा दिखाइएगा। ये खरीदी है आपने? जी खरीदी है जी। ये कितनी कीमत है इसकी? सर इसकी तकरीबन 40,000 रुपये कीमत है। तो ये बगैर लाइसेंस के मार्केट से मिलती है 40,000? हाँ यहाँ आते हैं सर दे जाते हैं, यहाँ घर बैठे दे जाते हैं। यहाँ से वो पठान आते हैं, कई और कौमे के लोग आते हैं यहाँ पे दे जाते हैं। अच्छा ये किराए पे भी मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है जी। किराया कितना होता है एक दिन? सर तकरीबन 800,000 रुपये होता है एक दिन का। जी। ये इलाका यानी हम जहाँ खड़े हैं जी मलीर का इलाका है? जी जी। अच्छा मलीर में ये जो असला है ये आम दस्तयाब है? जी बिल्कुल आम दस्तयाब है और लोग आते हैं। और लेकिन ये कि वो किराए पे भी चलाते हैं, कुछ पार्टनरशिप में भी चलाते हैं। ऐसे होता है कि जैसे कहीं मुझे डकैती करनी है, मैंने देख लिया कहीं माल और मेरे पास असला नहीं है, तो मैं किसी ऐसे क्रिमिनल लोगों से जाके मिलूंगा, उनसे कहूँगा कि भाई मेरे पास शिकार है, आप मुझे थोड़ा सा साथ दे दो, तो 1-2 बंदे भी देंगे मुझे और असला भी देंगे। और जब हम शिकार कर लेंगे उसके बाद आधा उनको दे देंगे, आधा हम खुद रख लेंगे। अच्छा ये पार्टनरशिप कहलाती जी है? ये पार्टनरशिप होती है। और जो किराए में तो ये मामला नहीं होता जी। अच्छा किराए पे देने से पहले कोई शनाख्त देखी जाती है? जी हाँ ये देखा जाता है, अगर असले को आगे पीछे कर दिया, अगर कहीं गुम हो गया तो उसके पैसे भरने पड़ते हैं। अगर आप गोली वोली भी 1-2 चलानी पड़े उसमें से, अगर आपने चला ली तो उसका भी पेमेंट आपको करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे इसकी जो सप्लाई है असले की जी कितनी आम है? ये एक बहुत आम है साहब। जिसने भी लेना होता है वो अपने पैसे खर्च करता है, ले लेता है, चाहे किराए पे ले ले चाहे पैसों से ले ले। क्या यहाँ का रिहायशी होना जरूरी है या कोई भी आए मलीर में और ये थोड़ा वक्त गुजारे तो उसको मिल जाए? नहीं ऐसा नहीं होता है सर। असल में इसलिए मुजरिमों का मुजरिमों से लिंक होता है और एक दूसरे की लिंक से, एक दूसरे की सिफारिश से वो उसको मिल जाता है। तो पुलिस इस पे चेकिंग नहीं करती? पुलिस कहाँ से चेकिंग करेगी? उन्होंने तो अपने खुद पेट पाला हुआ उधर, उसमें से उनका भी पेट लगा हुआ है। उन पुलिस को तो सब पता होता है। जिस दिन पाकिस्तान की पुलिस अगर इस सुधारने पे आ गई ना, तो मैं बोलता हूँ कि ये गटरों में आपको ये असला मिलेगा और गटर सारे बंद हो जाएंगे नस्ले से। जिस दिन अगर पुलिस खड़ी हो, गैरतमंद हो गई ना, उस दिन ये क्राइम नहीं रहेगा शहर की, पूरे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि देयर आर सम ब्लैक शीप्स इन योर फोर्स, जो इन चेक पॉइंट्स पे कुछ जो शिकायतें मिलती हैं मंथली की? और बिल्कुल होता है जी। आपको अपनी फोर्स के अंदर भी बाज़ लोग गलत कामों में मुलव्वस होते हैं, उन पे भी आपको चेक रखना होता है। ये जो रास्ता जहाँ हम खड़े हैं जी, ये किस लिए मशहूर है? यहाँ पे असले की खरीदो फरोख्त और लेन देन आराम से हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है जी। यहाँ से निकल जाते हैं या डकैती करते हैं, वहाँ पे किसी को वारदात किया, किसी के साथ कोई भी मसला किया, यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाले नहीं है। यहाँ से आप सीधे चले जाएं, बिल्कुल जामगोट की तरफ रास्ता निकलता है। कौन कौन सा असला है और नाम लें जो यहाँ मिलता है किराए पे? सब क्लाशन मिलती है, G3 मिलती है, अच्छे वेपन जितने भी हैं सब मिलते हैं तकरीबन। बड़ी बड़ी छोटे छोटे जो भी हों, TT है, माउजर है, या 9mm है, 22 है, 222 है, जितने भी असले हैं जो भी चाहिए वो उसको बिल्कुल मिल सकता है।
क्लाशनकोव का किराया क्या है? क्लाशनकोव का तकरीबन 3000 से ज़्यादा सर, 3-4 हज़ार रुपये एक दिन का? जी। और वो पिस्टल का? पिस्टल का 800 है, 500 है, ऐसे जैसी पिस्टल। टीटी? टीटी का भी यही है सर, 400, 450, 500। अच्छा, अब अगर एक आदमी किराए पे पिस्तौल लेके जाता है, पिस्टल लेके जाता है, असला लेके जाता है जी, तो ये तो नहीं पूछा जाता कि वो उस असले को क्या करेगा? नहीं पूछा जाता। वो जाके बेशक उससे वारदात करे, बिल्कुल जो कुछ करे मर्जी है, बंदा मार दे, बिल्कुल मार दे और वापस आके उसको बिल्कुल उसकी पेमेंट कर दे। बस पेमेंट कर दे असले की भी और पेमेंट कर दे गोलियों की। जी, जितनी गोलियां उसने फायर की हैं उसके पैसे आपको देने पड़े। कराची के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे असला ये किराए पे मिलता है? जी, ये बहुत से इलाके हैं। लियारी का इलाका है, कालाकोट का इलाका है, वाशगोट का इलाका है, और तकरीबन लांडी का इलाका है। ये जितने भी दूर जितने भी जो कोने में इलाके पड़ते हैं, जो सनसनाटे में पड़ते हैं, तो उस इलाके में ये ऐसे क्राइमिनल लोग हैं, होते हैं जो किराए पे भी चलाते हैं, उस तरह के शिकार भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो रहने वाले लोकल लोग हैं, जी, यहाँ पे जो इनकी आबादी है, मतलब यहाँ पे हम खड़े हैं, जी, गरीब का इलाका है, हाँ जी, तो ये रहने वाले आबादियाँ ये रोकते हैं, ये लोग रोकते हैं इसको, अपने सामने देखते हैं जब असले की? नहीं जी, आज को पता आपको गोली का दौर है, कौन रोकता है? जिसने रोका हो सुबह को वो नहीं होगा, वो पर कहीं ना कहीं उसकी पड़ा होगा, किसी नदी में या किसी नाले में पड़ा होगा। मसला ये है कि वो पुलिस भी उनकी नहीं सुनती ना। अगर चलो पुलिस का भी आसरा हो तो वो कुछ ना कुछ हिम्मत कर लें अपनी, उनको पता है कि वो पहले ही बिकी हुई है। जो नौजवान बच्चे हैं क्या वो भी आके लेते हैं? बिल्कुल 15-16 साल के? बिल्कुल लेते हैं सर, यहाँ पे तो 10-10, 15-15 साल के बच्चे वो भी शौक से लेते हैं आजकल किराए पे। बिल्कुल। हमने गुज़िश्ता बरस पार्लियामेंट में एक बिल जमा कराया जिसका हमने नाम रखा डी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान बिल। सबसे पहले आपको यह करना होगा कि जहां पाकिस्तान में असलहा बनता है, हुकूमत को यह करना होगा कि पहले कदम के तौर पर उन फैक्ट्रीज को खरीदना होगा उनके मालिकान से, और वहां पर काम होता रहे, और वहां से जो वेपन या एम्यूनेशन बन रहा है वो हुकूमत के कब्जे में चला जाए। दूसरा स्टेप जो है वो उसकी इंटरनल ट्रैफिकिंग का है। इसको कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेशन को मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में पहले आप उन फैक्ट्री वालों को 2 साल का अरसा देंगे कि 2 साल में या तो वो अपना बिजनेस खुद बंद कर दें, अगर नहीं करते तो हुकूमत उनसे खरीद ले। अगर वो 2 साल में नहीं कर पाते तो 2 साल और दिए जाएं उनको। ये हमने अपने बिल में सजेस्ट किया, 4 साल कर लें, और उसके 4 साल के अरसे में ये बात यकीनी बनाई जाए कि सप्लाई को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। जब डिमांड को सप्लाई नहीं मिलेगी उसके बाद आपको यह करना होगा कि 3 से 6 माह का अरसा आपको उन लोगों को देना पड़ेगा कि जिनके पास कानूनी असलहा है, और हुकूमत उस कानूनी असलहा को उन मालिकान से जिसके पास पिस्तौल है, बंदूक है, उनसे छीनेगी नहीं, उनसे खरीदेगी। और जो गैर कानूनी असलहा है उस पर उनको सरेंडर करना होगा अनकंडीशनली, वरना उस पर सख्त तरीन सजाएं हमने तजवीज़ की हैं। पहले तो मैं एमक्यूएम की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक कभी किसी बात से नहीं, मगर ऐसे तो बिल्कुल नहीं करूंगा। कराची में अगर आप चेक करें या किसी 100 घरों की तलाशी ले लें, सिंपल करें, उसमें से अगर 50 वेपन निकलता है तो 50 में से एक होगा जो पाकिस्तान लोकल होगा, दरे का बना होगा। इसराइली वेपन ही जरा पकड़े गए। दरे वाला बंदूक पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, क्योंकि दरवाल बंदूक के मैं आपको क्वालिटी बताऊं, वो जो चलाता है वो भी डरता है, जिसपे गोली चलती है वो भी डरता है। क्या डी वेपनाइज हो सकता है? कराची में 114 पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन पे महल्ला वाइज कमेटियां बन जाए, उसमें से हर तरीके का, हर पार्टी का 2-2 बंदे ले ले, वो 100, 50, 150, 200 बंदों की एक छोटी सी ताने की सतह पे एक समझो कि असेंबली बन गई, एक कमेटी बन गई। उसमें से फिर चुनाव करके इलेक्शन के जरिए कि भाई उसमें से सिर्फ 10 बंदे हमें चुनाव करें, वही बंदे उसमें से अच्छे जो इलाके के मोतबर अच्छे लोग हो, जो अच्छे शहरी हो, उनके नाम पे 10 बंदे उसमें से निकाले। वहां पे पुलिस SHO किसी भी घर पे कहीं भी विजिट करेगा उस 10 बंदों को साथ लेके जाएगा, उसके गवाह वही है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि खामखा जुल्म बर्बरी शुरू हो जाए, पुलिस की स्टेट न बने, उसके लिए करें। और अगर जिस घर पे तालाशी हुई, जहां से ये चीज मिला, तो गवाह उसकी वही है। उसके बाद उसके लिए कोई रियायत ना हो, जैसे हीरोइन है, उसके लिए आपने 2 साल तक जमानत नहीं होती, जरूरत पड़ जाए आर्मी भी आ जाए, हमारी आर्मी। जब ये आर्मी स्वात में काम हो सकता है, बुनियाद में इस्तेमाल हो सकती है, तो क्या है कराची में क्यों नहीं हो रहा है? मसले का हल क्या है? एक ही हल है, पुलिस वाले की गवाही को अदालत माने, बस खत्म है। बस बरतानिया में भी एक सिंगल पुलिस वाले की विटनेस नहीं मानी जाती, उनको भी दो इकट्ठे हो तो मानी जाती है। यहाँ पे भी अगर 2 पुलिस वाले इकट्ठे नहीं सर, इधर तो ये मेजर एक्ट पड़ा है, ये आप पढ़ें इसमें कि SP के सामने कन्फेशन जायज़ है, लेकिन कोई नहीं मानता। देखो ना, जब हमें कोई गवाह नहीं मिलता तो हम अपने 2 पुलिस वाले गवाह रख लेते, कोर्ट उनको मानती नहीं है, उसको बेल दे देती, पब्लिक वाले गवाही देते नहीं।
अब तक आने वाली पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें असले के फैलाव को रोकने में किस हद तक कामयाब रही, इसका नमूना आप देख चुके। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में हथियारों की मौजूदगी के होते हुए क्या इस मुआशरे में कभी जुर्म काबिले बर्दाश्त हदों में आ सकता है? और क्या आने वाले इलेक्शन से पहले कोई सियासी जमात इस नारे के साथ मैदान में उतरेगी कि वो इस मुआशरे को नाजायज असले से पाक करने का इरादा रखती है? और क्या आप वोट डालने से कबल अपने नुमाइंदों से ये सवाल करेंगे कि क्या आपका नुमाइंदा इक़्तिदार में आने के बाद आपको असले के खौफ से निजात दिलाएगा? इस सवाल का जवाब आप पर मुनहसर है। कब तक मैं बर्दाश्त करूं, खुद को क्यों बर्बाद करूं? ये गोरख धंधा कैसा है, गर्दन का फंदा कैसा है? तारीफ करो, ताजीम करो, इज्जत को कालीम करो, शहरत पे खंजर मार दो, बर्बादी की तालीम करो। क्या इंसान की हकीकत है, नसीहत की फसीहत है? बहुत हुआ अब खत्म करो, सबसे ऐला जंग करो। मैं बहुत दुखों का मारा हूं ना, इतना मुझको तंग करो।